भारत कतर बिजनेस फोरम 2025 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और कतर के संबंधों को पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ाकर स्थिरता, तकनीकी, ऊर्जा और उद्यमिता पर केंद्रित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का सहयोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है। गोयल ने भरोसे से व्यापार और परंपरा पर आधारित इस साझेदारी को बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य के लिए तैयार करने का आह्वान किया। From Qatar, all the distinguished delegates from India. Yesterday we saw Prime Minister Narendra Modi receiving his brother, the Amir of Qatar, at the airport. And I have not seen that happen too many times. And truly, that said it all. That reflected the engagement at the highest level. That reflected the growing trust and brotherhood between the two countries. The partnership which rests on the foundation of trust, trade and tradition. We have a very strong historical legacy starting right from the old times when we had the Silk Route. But today, we live in a new world, a new age, where we are rewriting the terms of trade. We are rewriting the way business will be conducted. In fact, they're creating new Silk Age routes, whether it's the IMEC, whether it's the newer technologies that we are engaged with. The entire engagement amongst countries, inter-se countries, between countries is going through a tremendous change, a little bit of a shake-up. There was a time when Qatar and India were very closely intertwined in a large number of products, goods and services. Over the years, we see a very great skew, a very great bias towards energy trading. And we welcome the energy products coming from Qatar. But I think we are now looking at a new future where we will transition from energy being the bulwark of our trade to new age technologies, whether it's artificial intelligence, whether it's the Internet of Things, quantum computing, semiconductors. The whole world is going through a major shift. Geopolitical tensions around the world have given us a lot to think about. Climate change is now defining the way businesses are conducted. Cybersecurity is becoming a threat which all of us will have to address in the days to come. There's a big focus on localization around the world, and more countries are getting into self-reliance, what we in India call Atmanirbharta. But at the same time, we all recognize that every country will have its comparative advantages. Qatar will bring to the table what it can do best, what it can do most competitively, as will every country in the world. And therefore, I think both Qatar and India are not in competition with each other. We complement each other. We are two countries who can work together for a better future, for more prosperity and well-being of the people of both Qatar and India. And Qatar has been really very welcoming to all the Indians who live there, whether it was COVID, when every Indian was looked after by His Highness and his team, or the various engagements we have had in multilateral fora. We are together set for a transition. We are set for a transition in the world. We are set for a transition in our own relations, be it in trade, be it in greater investments flowing both sides, working towards balanced trade as we move forward. And I think this transition is going to rest on the pillars of sustainability. It's going to rest on the pillar of entrepreneurship and energy. We have a huge startup ecosystem in India, which will be very inviting for investments coming in from Qatar. And we are looking at technology. These three pillars will define how we are going to work together in this changing world, where every 10 or 20 years we see a great reshuffle, both in the world order and in the business order. I was just reading in the last 20 years, the top 10 companies by market cap in the US have seen 9 companies move out of the list. Microsoft is the only company which continues from 2005 to 2025 in the top 10 companies by market cap. And there used to be 3 oil companies. I think it was Exxon, BP and Shell. All 3 were in the top 10 20 years ago. I think none of the, Aramco has come into the top 10. So we are really looking at a major shift in businesses, which will reflect in trade. His Excellency just mentioned about our bilateral trade, its growth.
But I do believe, given the strength of our relationship, the huge trust in this partnership, our effort to build newer horizons in this engagement, to have a future which takes us to the next level, both in trade and investment. And today we'll have two MOUs, one between CII and QBA and another between Invest Qatar and Invest India. We are also elevating the joint working group on trade and commerce to the ministerial level. With all of these efforts that the government is putting in, with the Qatar National Bank now expanding its presence in India, setting up shop in the Gift City, उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2025-26 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने समाजवादियों पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के हर अच्छे कदम का ये विरोध करते हैं। सीएम ने बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभाने की नसीहत दी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं, भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है। आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, खंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोररी देखी दिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India
with the finest fabric catering to all segment of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 8 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए चयन समिति ने एक नाम का फैसला करने के लिए बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र से पहले कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हार से हताश विपक्ष अपनी खुन्नस सदन पर नहीं उतारेगा, बल्कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में सकारात्मक योगदान देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लैटेंट पर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणियों को आपत्तिजनक, घृणित और गंदा बताया। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में दरार बढ़ने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन गृह विभाग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 20 विधायकों की वायु सुरक्षा वापस ले ली। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के आलोक में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में कई जगह बादल छाए रहने व कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना। देशव्यापी नक्शा परियोजना के तहत राजस्थान की 10 नगर पालिकाओं के इलाकों का ड्रोन सर्वेक्षण होगा और डिजिटल मैपिंग कर भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के तटीय जिलों तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ीन और कन्याकुमारी में निजी खनन कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए का कथित अवैध रेत खनन किए जाने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों से निराश न हो और पूरे जोर शोर से अम्बेडकरवादी संघर्ष जारी रखें। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी और इसके परिचालन पहलुओं की जानकारी हासिल करने के लिए तारापुर, महाराष्ट्र साइट का दौरा किया। एमसीडी मेयर महेश खिची ने सभी 12 जोन के डीसी के साथ हुई बैठक के बारे में प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में 12 जोन के 312 मार्केट में रोजाना रात में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए डीसी को आदेश दिया गया है कि वह नोडल अधिकारी नियुक्त करे जो सफाई व्यवस्था की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सफाई कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। आज हमने सभी 12 जोन के डीसीज के साथ अधिकारी मीटिंग बुलाई उन्हें, और आज हमने उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पहली बार चांदनी चौक बाजार में रात में सफाई करने का जो नियम बनाया था, उसी की तर्ज पर हम सभी 12 जोन में जो हमारे मार्केट्स हैं, जिसमें हमने 312 मार्केट को चिन्हित किया है और 312 मार्केट में रोजाना डेली नाइट में साफ सफाई करी जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक डीसी को यह ऑर्डर दिया है कि वहां पर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे और वो नोडल ऑफिसर की निगरानी में सारी वहां की साफ सफाई की व्यवस्था देखी जाएगी। और वो नोडल ऑफिसर जो प्रत्येक मार्केट में जो हमारे प्रधान है, जो हमारी आरडब्ल्यू है, उनको भी अपना वो नंबर प्रोवाइड कराएंगे और उनका भी वो नंबर लेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत आएगी वहां के प्रधानों को तो वो नोडल ऑफिसर को बोल के वहां उनको दुरुस्त करेंगे जो भी वहां की असुविधा होगी। तो मेरा भी यही है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो उनका विजन था कि दिल्ली को एक साफ और सुंदर और एक स्वच्छ बनाया जाएगा, तो उसी विजन को लेते हुए सभी 312 मार्केटों में रोजाना नाइट में साफ सफाई करवाई जाएगी। और मेरा भी ये दिल्ली वासियों से ये अपील है कि वो भी इस मार्केट की साफ सफाई में हमारा सहयोग देंगे, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कुछ भी ठीक नहीं है। तो आप पब्लिक का सहयोग बहुत जरूरी है। जैसा कि माननीय महापौर महोदय ने बताया कि आज सभी हमारे 12 जोन के जो उपायुक्त महोदय हैं उनके साथ मीटिंग ली गई और उनको सख्त निर्देश दिए गए कि दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए वो हरसंभव प्रयास करें। उसी में 12 जोन में 312 मार्केट चिन्हित की गई, जिनमें रात को स्वीपिंग की जाएगी, सफाई व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए हर वार्ड लेवल पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगी। हर मार्केट जो चिन्हित की गई है 312 जोन में है अभी प्रथम चरण में, उसमें हर मार्केट पर एक बोर्ड लगाया जाए जिस पर नोडल ऑफिसर का नाम और नंबर, सफाई कर्मचारी का नाम और नंबर होना चाहिए। इन्हीं बातों को देखते हुए आज हमारी तरफ से सख्त निर्देश दिए गए कि दिल्ली में साफ सफाई पर कोई भी
कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं आप सब मीडिया कर्मी बंधुओं के माध्यम से दिल्ली की जनता से भी अपील करता हूं कि दिल्ली को साफ और सुथरा बनाने में वो अपना सहयोग करें। इसमें जो सबसे हमारी बड़ी मार्केट करोल बाग, लाजपत राय मार्केट, रजौरी गार्डन और जो जितनी अनेक जो बड़ी बड़ी मार्केट है, और हर जोनों में जैसे किसी जोन में 12 मार्केट है, किसी जोन में 7 मार्केट है, किसी में 5 है, तो इसका टोटल जो करा है वो हमने 312 मार्केट का चिन्हित किया है। और सभी मार्केटों में जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो देखी जाएगी पूरी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में आज उदयपुर में द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत @2047 जल सुरक्षित राष्ट्र संकल्प के तहत राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण, प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं में किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संसाधनों के विकास, किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये राजस्थान का ऐसा नगर है, इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। आप इस झीलों की नगरी में पधारे हैं, निश्चित रूप से हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ CR पाटिल जी को कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ रखा है। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राज्य जल मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन के आयोजन के लिए आपने उदयपुर को चुना है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जैसा मैंने कहा CR पाटिल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस विभाग में और जल संचय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय बना करके देश की जल की समस्या को समझा और उसको समझते हुए उसको समाधान के लिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने काम किया। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब हमारा देश कैसा होगा, इसकी एक रूपरेखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के रूप में हमारे सामने रखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना हम सभी देख रहे हैं। हम सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों ने जल को राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग का विषय बना दिया है। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं के सहयोगात्मक संघवाद की जो परिकल्पना की थी उसका मन, वचन एवं कर्म से पालन करने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। राज्य जल मंत्रियों का ये सम्मेलन भी उसी भावना की जीती जागती एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ने हमें जल जीवन मिशन और नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं जैसी योजना दी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण को देश के विकास के एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सर्वोच्च प्राथमिकता क्योंकि उन्होंने एक मंत्रालय इसके लिए अलग से बनाया और उसकी योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित के लेकर काम कर रहे हैं। इन योजनाओं के दूरगामी प्रभाव ने केवल गांव-गांव में शुद्ध जल उपलब्ध कराएंगे बल्कि कृषि, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा घटते हुए जंगल, वन, सिकुड़ती हुई नदियां, कम होते हुए हमारे पहाड़, ये हमारे पर्यावरण के लिए घातक हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जिस तरह से हमारे संस्कृति में, हमारे विचार में हमने जो हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं, उसका ये सटीक उदाहरण है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति को संचय करने के लिए ये आवश्यक है कि हम उनको संरक्षित रखें और संरक्षित रखते हुए हमारे आने वाली पीढ़ी को हम उनको ठीक प्रकार से जीवन जीने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे और हमारा पानी भी मिले, उसके लिए हम काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय का सानिध्य मिलना राजस्थान के लिए शुभ है। हमारे प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमें उनका सानिध्य मिला तब प्रदेश को राम जल सेतु लिंक परियोजना की सौगात मिली थी और वो यह कोई सामान्य परियोजना नहीं है, प्रदेश के जीवन रेखा है। यह परियोजना प्रदेश के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी के पेयजल उपलब्ध कराएगी। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे राज्यों का इस तरह का रवैया रहता है कि वो 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से हमारी नदियों में पानी
पानी बह करके जा रहा है उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी सोच, हमारा विचार इस तरह का बन गया है कि अगर हम ये करेंगे तो हमको नुकसान जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो नदियों का पानी बेकार जा रहा है, गाँव का पानी जा रहा है, खेत का पानी जा रहा है और वो जाकर के समुद्र में पूरी तरह से समा रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हम उसका उपयोग कितना कर सकते हैं। हम उसका उपयोग ना करके हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारी मानवता के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जब तक हम जल संचय का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, नदियों से नदियों जोड़ने का काम देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, और मैं कह सकता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको करके दिखा रहे हैं और वो काम प्रगति पर चल रहा है। आज हम देख सकते हैं कि माननीय मोदी जी और CR पाटिल जी की प्रेरणा से कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है तो सरकार सिर्फ उसका सहयोग कर रही है, लेकिन वो कर्म भूमि से मातृभूमि में जो हमारे उद्योगपति हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कभी प्याऊ लगाते थे, बावड़ी बनवाते थे, तालाब बनाते थे, कुआं बनाते थे, जिनके लिए पानी की संचय की व्यवस्था होकर के जन को पानी पिलाने का काम करते थे, ऐसे ही वो लोग आज निकल करके आए हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूं कि राजस्थान में पानी की जो किल्लत है और पानी की जो परेशानी, राजस्थान से ज्यादा कोई भी प्रदेश शायद नहीं जान सकता है। मध्य प्रदेश के रायसेन में नक्शा सिटी सर्वे प्रोग्राम का राष्ट्रीय शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। आपको बता दें कि नक्शा प्रोग्राम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड का सटीक और विश्वसनीय दस्तावेजीकरण करना है। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम से 23 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं। साथ ही कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं CM यादव ने बीजेपी शासन में मध्य प्रदेश में किए गए विकास पर चर्चा की। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये केवल सांची का कार्यक्रम नहीं है, ये केवल रायसेन का कार्यक्रम नहीं है, ये मध्य प्रदेश का कार्यक्रम भी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में नक्शा कार्यक्रम आज लॉन्च किया जा रहा है पूरे भारत में। और आज 23 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि यह कार्यक्रम मैं रायसेन से प्रारंभ करूं और मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में आए, ये दिल से इच्छा थी। और इसलिए हमने तय किया जब भी होगा ये मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायसेन में ही कार्यक्रम किया जाएगा। और आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है पूरे देश के लिए। डॉक्टर साहब, देश को बड़ी सौगात मिल रही है, लेकिन आप भी बड़े कलाकार हैं। और मैं कह रहा हूं अपने मुख्यमंत्री जी से, जो मांग डॉक्टर प्रभुराम जी ने की है उन मांग के साथ हम भी खड़े हैं, अपने आप को उससे प्रतिबद्ध करते हैं। और आपको मन के भी मोहन है, सब दे दें, कई दे दिए और बाकी भी हो जाएगी, चिंता मत करो। मेडिकल कॉलेज भी रायसेन में बनेगा क्योंकि भूमि पूजन हुआ है। और उस बात को भी डॉक्टर मोहन यादव पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है जिस गति से काम कर रहे हैं। लेकिन ये नक्शा कार्यक्रम क्या है? नक्शा कार्यक्रम का मतलब है आपका घर का परफेक्ट नक्शा, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो। देखो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजनरी लीडर है। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, वरदान। भाग्य से ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं। इन चीजों की तरफ दुनिया में कभी, भारत में कभी कांग्रेस की सरकार ने सोचा ही नहीं। हमारे पास गांव की अपनी जमीन का, खेत का नक्शा ढंग का नहीं है। हमारे पास शहर में घर है लेकिन उसका ढंग से नक्शा नहीं है। और कई बार इसलिए भूमि के विवाद 90% नक्शे के कारण होते हैं। आज यहाँ से हिंदुस्तान के 23 राज्यों में, शहरों में नक्शा बनेगा। ड्रोन के माध्यम से पहले सर्वे होगा और उसके बाद जमीन पे फिजिकल वेरिफिकेशन करके आपके मकान का नक्शा डिजिटली बना के आपको दे दिया जाएगा। और जब नक्शा नहीं होता तो कई घपले और घोटाले। अगर कोई के मन में आ गया तो रामलाल की जमीन श्यामलाल के पास चली गई। श्यामलाल बेचारे रामलाल गोल हो गए। बाद में पता चला कि ये तो जमीन मेरी थी लेकिन हो गई दूसरे के नाम। अब ये नहीं होगा। आपके पास आपकी जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा। ये डिजिटली लैंड रिकॉर्ड अपडेट करना एक क्रांति है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं फिर अभिनंदन करता हूं। इस नक्शे के कार्यक्रम के साथ साथ उसके अलावा अपने वीडियो फिल्म में देखे, मैं उस पर विस्तार से आपके सामने विषय को नहीं रख रहा। लेकिन दूसरा कार्यक्रम और जो पूरे मध्य प्रदेश में आज लॉन्च कर रहे हैं, आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बिना पानी के हमारा काम चल सकता है क्या? ऐसे मरी आवाज में नहीं चल सकता है क्या? जल जीवन का आधार है और जल और जमीन से ही हमारी जिंदगी है। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार पानी जमीन में नीचे जाता जा रहा है। वो कुएं
जो कभी 50 फीट पे, 30 फीट पे, 20 फीट पे पानी रहता था, आज 100 फीट नहीं, कई जगह 400 फीट पानी नीचे चला गया है। बताओ ये पानी रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? जोर से बताओ, रोकना चाहिए कि नहीं? और ये पानी रोकने के लिए, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, ये रोकने के लिए वाटर सेट की योजना बनाइए। जल लाए धन धान्य, और इसलिए चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, पर्कुलेशन टैंक, कई जल संरचनाएं बनेगी, जिसके लिए 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। और जो परियोजना, जो पंचायत अच्छा काम करेगी, 20 लाख रुपए उसको अतिरिक्त परियोजना में इन कामों के लिए दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। लेकिन ये काम केवल सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज को खड़ा होना पड़ेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर पानी नहीं बचाया तो कल हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे बेहतर हो पाएगा? उसलिए पानी बचाना जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि वाटर सेट यात्रा में आप सब जुड़े और जुड़ के इस वाटर सेट के कार्यक्रम को सफल बनाएं। सरकार का पैसा भी आएगा, लेकिन हम अपने गांव के पानी को बचाने के लिए हम भी तो कुछ करें मेरे बहनों और भाइयों, तब ये पानी बचेगा। इसलिए वाटर सेट का जो यात्रा है आज पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ से प्रारंभ हो रही है। लेकिन केवल वाटर सेट यात्रा नहीं, पानी तो बचेगा ही। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन मैं फिर करना चाहता हूँ। डॉक्टर मोहन यादव जी का भी अभिनंदन करता हूँ। कैन और बेतवा, अब दोनों नदी जुड़ेगी और कैन जिसका ज्यादा पानी है, बेतवा में आएगा और रायसेन जिले की जमीन में भी सिंचाई करेगा। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा अलग हटके है, लेकिन इसका मजा भी है हमारे लिए। यहाँ अपने रायसेन के अंदर, मूलतः रायसेन जिला, विदिशा जिला, ये तो पूरा प्रदेश ही माननीय भाई साहब के माध्यम से जिस प्रकार से खेती किसानी के लिए ऊपर हेलीकॉप्टर से मजा आ रहा था, जहां तक निगाह जाए खेतों की लहलहाती फसलें आनंद में डुबा रही है। ये जो मजा है, इसका एहसास हम सबको है। माननीय चंद्रशेखर जी कह रहे थे भाई साहब से कि सब दूर ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई रही है। हमने कहा आपने तो अभी कम देखा है, थोड़ा और ऊपर से देखो तो पूरे प्रदेश में हरियाली दिखाई देती है। ये मध्य प्रदेश का मजा है। और ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2003-4 में इसी राज्य के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। कहाँ 1956 में बना मध्य प्रदेश, और कहाँ 3-4 तक की ये लंबी यात्रा। लेकिन एक क्षेत्र में नहीं, सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का 2-1 साल पटवाजी का विकास का मामला छोड़ दो, या वो हमारे अपने जनता पार्टी का पूरा समय कांग्रेस के हाथों में था। लेकिन पूरा प्रदेश गरीबी में नंबर 1, सिंचाई अभाव में नंबर 1, अव्यवस्था में नंबर 1, बिजली नहीं मिले नंबर 1, लगातार प्रदेश अंधेरे में था। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिनके माध्यम से अब ये 15 साल 20 साल में जो सरकारें चली, और माननीय भाई साहब का सबसे अच्छा समय रहा जब बिजली में सरप्लस है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब तो आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब रात में आपको पानी खेती में लगाने की जरूरत नहीं है, दिन में बिजली मिला करेगी, दिन में बिजली अपने खेतों के अंदर मिलेगी। आने वाले समय में एक एक करके जिस प्रकार के विकास के कामों को लेकर के यहाँ हमारे लिए आज आधार बना है। आधार कृषि प्रधान अपना प्रदेश, और कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर ये जो नवीन तकनीक का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, एक बार दिल से जोरदार अभिनंदन करो। क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और क्या उनका विजन है, क्या उनका काम करने का तरीका है। दुनिया के सारे देश, कौन ऐसा देश का दुनिया का बड़ा नेता नहीं है जो मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका नहीं, पूरे देश का अभिनंदन है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। दुनिया का सबसे बड़ा नेता, अमेरिका का राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे धनी देश, इतना सुंदर लगता है। हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई जब प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ करके 2 शब्द लिखने गए। अमेरिका का राष्ट्रपति कुर्सी सरका के मोदी जी के लिए सम्मान दे रहा, ये आनंद की चीज।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।